Can you please confirm whether you are able to see my screen or not? Yes, sir. Okay. So, means earlier I told you that there are only 5 oxidizing anions. So it's wise decision to remember only their names. So these are nitrate, nitrite, Cr2O7. That's called chromate. No, I don't know its name. Sorry. So just write down Cr2O7 -2. And now after that, write down chlorate. Sorry, perchlorate, ClO4 minus, and then iodate. Only these 5 anions are important for us. तो कौन कौन से हैं वो? तो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, Cr2O7 2 माइनस है, ClO4 माइनस है और आयोडेट माइनस है, मींस IO3 माइनस है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एनायंस में स्पेशल क्या होता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस में स्पेशल क्या होता है मैं बताता हूँ। जिससे कि ऑक्सीडाइजिंग एनायंस में अगर नाइट्रेट को हीट करेंगे ना तो उसमें से हम लोग को मिलेगा N2O. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. It has been asked in J Advance quite a lot of time that after heating NH4, NO3, what we will get? So we are going to get N2O. And can you please tell me whether you have seen this or not previously? Laughing gas. Yes. Yes, sir. And its nature is neutral. Neutral. Yeah. So it's very important. तो नाइट्रेट को हीट करने पे N2O मिलता है, बाकी जो 4 हैं उनको हीट करने पे नाइट्रोजन गैस मिलता है, N2 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग नाइट्रेट को हीट ऐसे एरो बना के उसके ऊपर हीटिंग का सिंबल देके N2O लिख देना, फिर से बाकी 4 जो हैं इन सबको हीट करने पे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस मिलेगा। वही नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन जो है उनको हीट करने पे हम लोग को अमोनिया गैस मिलेगा। On heating non-oxidizing anions, but always remember that we are talking about only ammonium salts. Okay, so in that salt ammonium should be present. तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस को हीट करने पे NH3 मिलेगा, NH3. And yeah, write down, मतलब if you want then write down examples of non-oxidizing anions. All the anions except these 5 are going to be non-oxidizing. You can write down HCO3 minus, Cl minus, SO4 3 minus, PO4 3 minus, CO3 2 minus, and बहुत ज्यादा। सर क्या सभी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन से NH3 मिलेगा? हाँ हीट करने पे? हाँ, अगर वो अमोनियम का सॉल्ट है तब। जी। हेलो यस सर। सर कब तक होगा मोबाइल? जस्ट हुआ ओ भाई या आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड हेयर ओनली। सो इसके बाद से जस्ट एग्जांपल्स है, या एक अच्छा पॉइंट था, इसको आप लोग लिख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आल्सो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो आर्ची मींस डू यू हैव चार्जर beside you? So यस सर, पर पता नहीं चार्ज ही नहीं हो रहा है घर पे। okay, you can see the recordings also, you can leave the class. Okay, ओके सर। I will just upload the recording after this class. Okay, so okay, bye. So rest of the student, please write down or note that
Very pure nitrogen is obtained from sodium azide or barium azide. And remember, this point is going to be very crucial. Very pure nitrogen is obtained from sodium azide or barium azide upon heating. ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए, अरे भाई ये तो क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ था, शायद 2020 में ही आया हुआ था, तो इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद। सो या फिर मेरे किसी टेस्ट में आया होगा तो मुझको याद है। सो बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड को हीट करने पे वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। ये सब जो है ना हमारा पी ब्लॉक के लिए हम लोग बेस बना रहे हैं। मीन्स पी ब्लॉक में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगा रहे ये तो सब पढ़ा दिए पहले से, बिना मतलब का समय खा रहे हैं। यस, कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस मोस्टली चीज हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। या तो आई गेस यू हैव रिटन डाउन दिस। डन? Yes, sir. ओके, सो there is a question that total number of reaction which is or are produces nitrogen gas. Okay, so here it is asked that we have to find the total number of reactions in which we are going to get nitrogen gas. So you know that all the salts here are ammonium salts. Okay, and we will get nitrogen only if we have oxidizing anions. And in oxidizing anions also we should have last 4 oxidizing anions, means oxidizing anions except nitrate. So if we have NO2 minus, Cr2O7 2 minus 87, and then perchlorate ClO7, what was that? ClO7, oh sorry, ClO4 tha, ClO4 minus and then iodate, IO3 minus. Okay, then these 4 are going to give nitrogen gas only. Okay, means in the salt of ammonium, if it is non-oxidizing anions, then it is not going to give us nitrogen gas, it will give ammonium gas, ammonia, NH3. And if it is NO3 minus, then it is going to give us laughing gas. So the rest 4 will give us nitrogen gas. So here we have to only identify those compounds in which one of these 4 anions are present. So you can see that here NO3 minus is present, so it will not give nitrogen gas, it will give us laughing gas. Okay, here we can see that NO2 minus is present, so it is here and it will give us nitrogen gas. Okay, and here we can see that Cr2O7 is given and it will give us nitrogen gas. Okay, here chlorate is given, so it will give nitrogen gas. Here iodate is given, so iodate will give nitrogen gas. Here now these 2 are exceptional cases, it's not, मतलब ये हमारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले बताइए कि ये 4 या 5 ऑप्शन आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, नाइस। सो अब हम लोग को 2 चीज लिखना है। एक लिखिए कि अमोनिया को अगर हम लोग एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा NCl3 प्लस HCl, और अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया को क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को नाइट्रोजन प्लस NH4Cl मिलेगा। जस्ट राइट डाउन दिस एंड उसके बाद से हम लोग फिर से बात करते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे याद रखें कि कब क्या बनेगा। डन, जैसे ही हो जाए आपको बता दें। ओके ओके, नाइस। So here you can see that chlorine is in excess.
सो जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड बना दोनों में क्लोरीन है। कैन यू गाइस सी इट? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, और देखो जहाँ नाइट्रोजन एक्सेस में है वहां दोनों के दोनों कंपाउंड में नाइट्रोजन है। दिखा? Yes, sir. So in this way you can remember that which is going to be formed. When chlorine is in excess, then chlorine should be present in both the compounds. So the means only option is that nitrogen chloride means NCl3, which is explosive in nature, and HCl. Okay. And when nitrogen is in excess, it should be present in both the compounds. So one of them will be nitrogen and other will be NH4Cl. These all means all the things which we are learning today are very informative things. So you have to keep revising these things on daily basis. Only then you will be able to just remember them. Okay. So let's write down microcosmic salt. Microcosmic salt. And its formula is NaNH4HPO4.4H2O. NaNH4HPO4.4H2O. Here the four water molecules are called lattice water. यहाँ पे जो चार वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग लैटिस वाटर बोलते हैं। यू कैन राइट अलोंग विथ मी। एंड जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये 4 मोल ऑफ लैटिस वाटर को बाहर निकाल देगा और ये बच जाएगा क्या NaNH4HPO4। बट अगर हम लोग उसको फर्दर हीट करें तो फिर से हम लोग को मिलेगा क्या? बताओ, ये जो अमोनियम का एक सॉल्ट है, ठीक है, और इसमें जो एनायन है वो है HPO4-। तो HPO4- जो एनायन है ये क्या रिलीज करेगा बताओ हीट करने पे? टेल मी। इट विल रिलीज Water. अमोनिया NH3। से रिपीट करना। बोला मैं कि NaNH4HPO4 माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को में 4 वाटर लैटिस वाटर होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये चारों लैटिस वाटर उड़ जाएगा और बचेगा हमारा NaNH4HPO4, ठीक। अब अगर हम लोग इसको फर्दर हीट करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये एक सॉल्ट है सबसे पहला बात, और ये सॉल्ट एक अमोनियम सॉल्ट है। और अमोनियम सॉल्ट में अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एनायन कौन सा है। तो इसमें जो एनायन है वो कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एनायन है या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है? बताइए। HPO4 Non-oxidizing. yeah, so it's non-oxidizing anion. So non-oxidizing anion always release ammonia gas upon heating. Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगा। नाउ डू यू गॉट इट? आप समझ में आ गया? Yes, sir. ओके ओके। So after heating NaNH4HPO4 we are clearly we are going to get ammonia, but along with ammonia we are going to get 5 mole of water, and there is one more compound which is NaPO3। NaPO3 this मतलब इसके बारे में पूरा एक मतलब कि महाभारत ही है। NaPO3 के बारे में इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट। NaPO3 is called sodium metaphosphate, and in qualitative analysis chapter we means it's just a topic, we have to read about the metaphosphates, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेप में हीटिंग किया, लेकिन अगर कोई बोले कि भाई स्ट्रांगली हीट कर दिए तो क्या बना? तो स्ट्रांगली हीट करेंगे तो डायरेक्टली जो फाइनल कंपाउंड है वही बन जाएगा, इंटरमीडिएट वाला नहीं बनेगा। तो फाइनल कंपाउंड अमोनिया प्लस 5H2O प्लस NaPO3 मींस सोडियम मेटाफॉस्फेट। डन? Yes, Done? sir. Okay, so we will stop only here. Tomorrow we Sir? will yeah। सर लैटिस वाटर वाटर और क्रिस्टलाइजेशन एक ही होता है? हाँ हाँ हाँ। यस। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक नहीं होता है। मतलब अभी के लिए तो मान लो आपकी एक होता है,
but I will give you some examples where it is not same. Okay, and on that day I will tell you the difference, because अगर मैं आज बोल दूं कि ये अलग अलग होते हैं, then a question will arise in your mind that sir please tell me that then what is water of crystallization and what is lattice water. Okay, so मतलब वो एग्जांपल्स जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मोस्टली केसेस में मतलब यूज कर सकते हैं लैटिस वाटर के जगह पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ CuSO4.5H2O का, तो उसमें कुछ लोग उसको लैटिस वाटर बोल देंगे, बट CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। बट वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि लैटिस वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या इसमें कुछ अंतर है या नहीं है, ठीक है ना। जस्ट वेट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो फिर से उस समय का मजा खत्म हो जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, Yes. हाँ ये जो नेक्स्ट पेज है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट ऐसे ही है ये, आप लोग ऐसे लिख लेना और इसको याद भी कर लेना। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का है, दो ऐसे ही एग्जांपल है, ठीक है ना। देयर इज नो लॉजिक, मेरे को कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आता इसके पीछे। एंड ये जो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैसेस पूछा हुआ है, तो बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस है, बाकी सब हो जाएगा। तो जो भी एनायंस होगा अगर वो 5 को छोड़ के, वो सारा का सारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, इसीलिए वो सारा का सारा अमोनिया रिलीज करेगा। ओके, टुमारो वी विल रीड अबाउट हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट्स। ओके, and then we will read about heating of hydrated metal chlorides. And yeah, this is not very important, so I will not means मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसको पूरा रट जाओ। मैं पूरा रटा था भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, because I don't think that it is in syllabus of advance. Yeah, these things are important, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस ब्लॉक में भी पढ़ना है। लेकिन ये जो CuCl2 है, TiCl3 है, that are not that much important. And then we will read about some exceptional cases, and yeah, then our ionic bond will be over, and from then on we will read about covalent bonds, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, फिर से मतलब वो कैसे बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है कोई भी कंपाउंड का, फिर से 1s क्या होता है, 2s क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। और ये सब कैसे कैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है, फिर से NO2+ कैसे दिखेगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो everything is going to be very interesting. So yeah, we will stop only here, and